How to draw Lewis structure. Drawing of structure is very important for molecules, especially for organic and inorganic molecules. In order to draw structure of molecules, we have to follow some rules. So rules. Rule 1. Calculate valence electrons for given species. This number is represented by N1. Valence electron is the number of electrons present in outermost shell of an atom of the element. As for example, N1 for water is 1, hydrogen has only 1 valence electron, into 2 plus oxygen has 6 valence electron. Therefore, N1 comes to 8 for water. Next example, NO2 plus N1 equal to 5 plus 6 into 2 minus 1, 16. CO3 2 minus N1 will be carbon has 4 valence electron, oxygen has 6, 3 atom plus 2 for 2 negative charge. So N1 for carbonate ion comes to 4 plus 18 plus 2, this will be 24. So calculation of N1 is very easy. Now rule 2 नोट कीजिए. Rule 2. Calculate number of electrons needed for all atoms to achieve noble gas configuration. This number is represented by N2. This number is represented by N2. So N2 will be 2 into number of H atoms plus 8 into number of all other atoms. Hydrogen need only 2 electrons for attain stability, while all other atoms need 8 electrons. Examples:
for HNO3, N2 will be 2 into 1 plus 8 into hydrogen is one atom, so 2 into 1, and other atom is nitrogen and oxygen. Nitrogen is only one and oxygen has 3 atoms, so 8 into 4, 1 for nitrogen, 3 for oxygen. So value comes to 2 plus 32, 34. Now another example, H2SO4, N2 is equal to 2 into 2 plus 8 into 5, 4 plus 40, it comes to 42. For carbon dioxide, N2 will be 2 into 0, 0 because hydrogen is not present, and other atoms will be 3, 1 carbon and 2 oxygen. So value comes to 24. नोट कीजिए. हो गया. रूल 3. तो N2 निकालना आसान है, सिंपल निकाल सकते हैं. ध्यान यही रखना है, N2 होगा 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ ऑल अदर एटम्स. रूल 3. कैलकुलेट number of shared electrons. This number is represented by N3 and N3 can be calculated as N3 is the difference of N2 minus N1. N3 is number of shared इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अगर आप N3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएगा. और ध्यान रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आपको बताया गया था. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द outermost शेल ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट. वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 2 तरह का होगा. एक आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स.
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. Shared electrons are those valence electrons which participates in bond formation, while unshared electrons are electrons that are that valence electrons which are not used in bonding. आसान है, आगे जरूरत पड़ेगा. N4 का तो हम लोग आते हैं रूल 4 पे. रूल 4 कैलकुलेट, नोट कीजिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. This number is represented by N4 and N4 is the difference of N1 minus N3. N1 minus N3. N4 is the number of unshared इलेक्ट्रॉन्स. अगर आप N4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको निकलेगा नंबर ऑफ लॉन पेयर्स. दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are not used in bond formation are called lone pair. Finally, rule 5 assign formal charge. Assign formal charge to all atoms. We will shortly discuss about formal charge. अब 5 रूल आपको बताया गया स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए. पहला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना था, आपको N1 से रिप्रेजेंट किया गया. सेकेंड था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सिंपल है, उसके लिए फॉर्मूला था 2 इंटू नंबर ऑफ H एटम्स प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ ऑल अदर एटम्स. उसी ढंग से हम लोग N3 निकाले, N4 निकाले. N5 का जरूरत फाइनली पड़ेगा, अभी फिलहाल यूज करते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं. सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे वाटर पे. जाना पहचाना मॉलिक्यूल आपके लिए है, स्ट्रक्चर सबको मालूम है, लेकिन ट्रिक से कैसे हम लोग करेंगे, शॉर्टकट से कैसे करेंगे. देखिए, कभी भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम को ढूंढना होता है. सेंट्रल एटम मतलब जिसका संख्या कम होगा वो सेंट्रल एटम. वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कम है तो यह क्या होगा आपका सेंट्रल एटम. एक बात ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा. तो इसके लिए आप सेंट्रल एटम है OHH ड्रॉ कर दीजिए इसे. अब वाटर के लिए N1 कैलकुलेट आप करें तो N1 आपका आएगा 1 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 8
बहुत आसान है, आपको बताया गया था। N1 कैसे निकालते हैं, हर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना, सिंपल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना जानते ही आप हैं। अब वाटर का, अब अगर यहाँ पे N2 निकालें तो N2 आपको बताया गया था 2 इंटू नंबर ऑफ एच एटम्स, तो 2 इंटू 2 होगा, H2 है और अदर एटम केवल ऑक्सीजन है, तो 8 इंटू 1 तो कितना आएगा 12, ठीक है। अब N3 निकालेंगे तो N3 आप निकालते हैं N2 और N1 का डिफरेंस लेते हैं, तो आपका ये वैल्यू आएगा 12 माइनस 8 4, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप निकाल सकते हैं। आपको बताया गया था नंबर ऑफ बॉन्ड्स के लिए क्या करना होता है। N3 का जो वैल्यू आएगा 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा। अब अगर N4 की बात करें तो N4 के लिए आपको बताए थे, आपको निकालना है N1 और N3 का डिफरेंस, तो N1 आपका 8 है, N3 आपका 4 है, तो ये वैल्यू 4 आएगा। और नंबर ऑफ लॉन पेयर, LP मतलब लॉन पेयर, पेयर निकालना है तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, सिंपल है। सबसे पहले आप फोकस कीजिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आए हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 आया है, आपको मालूम है 2 बॉन्ड रखना है, हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे और ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाता है, आपको मालूम है, तो बॉन्ड 2 आया था, 2 बॉन्ड हो गया। अब लॉन पेयर की बात करें तो लॉन पेयर आप हमेशा सेंट्रल एटम पे चेक करें। अब कहीं भी बॉन्ड बनता है, यहाँ पे 2 बॉन्ड बना है, तो 2 बॉन्ड 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ होगा 4, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, इसका मतलब ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यूज आपका 2 हुआ है, 4 बचेगा, 4 का मतलब 2 पेयर, आप देख सकते हैं कि लॉन पेयर 2 है, बहुत सिंपल केस था, आपको मालूम था। जितना आसान वाटर का बनाना है उतना ही आसान किसी भी मॉलिक्यूल या आयंस का है। तो नेक्स्ट हम लोग अमोनिया मॉलिक्यूल्स की बात करें। सेकंड एग्जाम्पल NH3 अमोनिया। अमोनिया का भी स्ट्रक्चर सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्रिक से देखेंगे। इसके बाद हम लोग आयंस पे आएंगे। जैसे अमोनिया की बात करें तो सेंट्रल एटम आपको ढूंढना होगा, तो सेंट्रल एटम आपको हम बताए थे लेसी नंबर, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, H कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है, तो सेंट्रल एटम है, आप 3 H है तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अब कैलकुलेट कीजिए N1 N2 N3 N4, आसान है कैलकुलेशन। देखिए निकालिए, देखिए नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, ये वैल्यू 8 आएगा। अब N2 जान ही रहे हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ H एटम्स, 3 H है, अदर एटम केवल नाइट्रोजन है 1 है, 8 इंटू 1, ये वैल्यू आपका कितना आएगा 6 + 8 14 आएगा।
N3 आप निकालेंगे तो N3 आपका कितना आएगा। अब N2 का वैल्यू 14 है, N1 का वैल्यू 8 है, ये वैल्यू 6 आएगा और नंबर ऑफ बॉन्ड 6/2 = 3। अब N4 निकालते हैं, सिंपल है, N1 माइनस N3, तो N1 आपका 8 है, N3 6 है, तो ये वैल्यू 2 आएगा। लॉन पेयर की बात करें 2/2 = 1। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कितने बॉन्ड्स हैं। 3 बॉन्ड्स हैं, आपको मालूम है, H एक बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड तो ही गया, और नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्टेट हर एक एटम का कंप्लीट है। अब लॉन पेयर पे आएंगे, लॉन पेयर 1 आया है। अब नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, 3 बॉन्ड N बना रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यूज किया, कितना बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का मतलब 1 पेयर, सिंपल है, आप कर सकते हैं। आगे कार्बन डाइऑक्साइड का नेक्स्ट केस है, खुद से ट्राई कीजिए आप। कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए। ऑन कर दिए, हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेंटर एटम कौन होगा, संख्या किसका कम है, कार्बन का, तो कार्बन क्या होगा आपका Ca मतलब सेंट्रल एटम। आप सिमेट्रिकल स्केलेटन बनाइए, कार्बन बीच में होगा और दोनों तरफ ऑक्सीजन होगा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए N1 कितना आएगा, कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 6 × 2, ये वैल्यू कितना आएगा 4 + 12 = 16। अगर N2 की बात करें तो 2 इज अ नंबर ऑफ 2 फॉर हाइड्रोजन। अब चूंकि हाइड्रोजन नहीं है तो 0 लिखेंगे। अदर एटम आपका कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, ये वैल्यू कितना आएगा 2 × 0, 0 + 24, ये वैल्यू 24 आएगा। N3 निकालना हो तो N3 आप निकाल सकते हैं, डिफरेंस लेना है सिंपली, तो 24 - 16 कितना आएगा 8, और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर आप निकालेंगे तो 8 / 2 4, 4 बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में होगा। अब N4 की बात करें तो N1 - N3, तो 16 - 8, ये वैल्यू 8 आएगा। नंबर ऑफ लॉन पेयर 8 / 2, 4 लॉन पेयर। अब फुलफिल करना है। देखिए अब जहाँ तक सवाल है 4 बॉन्ड है तो एडजस्ट करना होगा बॉन्ड को। तरीका एक ये भी है कि आप एक तरफ एक बॉन्ड दें और दूसरे तरफ 3 बॉन्ड दे दें, और दोनों तरफ 2-2 बॉन्ड दे दें, तो पहला सही है दूसरा गलत है, इसलिए कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बना सकता है। अब लॉन पेयर हमेशा सेंट्रल एटम पे चेक करना होता है, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। अब लॉन पेयर कार्बन पे नहीं होगा, इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया है और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 खर्च हुआ, 4 का मतलब कितना पेयर 2 पेयर, तो आपका
लोन पेयर 4 आ चुका है। एक बात याद रखिएगा आप लोग, कौन एटम कितना बॉन्ड बनाएगा, तो इसके लिए हम आपको बताएंगे। पहले नोट कीजिए। हो गया, हो गया। देखिए ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जनरल, इन जनरल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बराबर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जरूरत पड़ेगा, अभी आप देखें H 1 बॉन्ड बनाया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया। कुछ नहीं है, सिंपल है। देखिए यहां पे हम लोग स्पीसीज की बात करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा। बी का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फाइनली नंबर ऑफ बॉन्ड्स। स्टार्ट करें कार्बन से। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आप जानते हैं, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 रह सकता है, 2n²। तो यहाँ पे पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे सेल में 4 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 सेल है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे सेल में 4, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। बॉन्ड कितना बनेगा? 8 में 4 घटाना है, ये वैल्यू 4 आएगा। सबको मालूम है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बहुत आसान है। अब अगर N की बात करें, 7 एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आप लिखेंगे, पहले सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 आ सकता है, 5 है बचा तो 5 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। अब बॉन्ड कितना होगा, तो 8 माइनस 5 तो कितना होगा, 3। ऑक्सीजन की बात करें, 8 होगा, 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, आप 6 लिखें। बॉन्ड्स 2 होगा। F की बात करें, 9 होता है, तो 2 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड 1 आएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें N प्लस का, N प्लस का मतलब नाइट्रोजन के पास 7 नहीं 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, बॉन्ड कितना बनाएगा, 4 बनाएगा। N 3 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन N प्लस 4 बॉन्ड बनाएगा, याद रखिएगा। अगर N माइनस की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो लिखेंगे आप 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड 2 बनेगा। उसी ढंग से अगर हम लोग बात करें O प्लस का, तो O प्लस के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्ड 3 बनेगा। O माइनस, तो इलेक्ट्रॉन्स 9 होगा, 2 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, बॉन्ड कितना बनेगा, 1। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन O प्लस 3 बॉन्ड बनाएगा, O माइनस 1 बॉन्ड।
तो अब हम लोग आयंस का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। जितना आसान मॉलिक्यूल का होता है उतना ही आसान आयंस का। जैसे लोग स्टार्ट करें सबसे पहले, और ये थोड़ा जगह छोड़ लीजिएगा क्योंकि आगे हम यहाँ पे अभी नोट कर लीजिए। जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, इस 3 एटम का जरूरत पड़ेगा आगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें सल्फर का 16, फास्फोरस 15, क्लोरीन 17, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अगर लिखें तो 2 पहले सेल में, दूसरे में 8, 16 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब 6 होगा। यहाँ पे 2 8 5 होगा, यहाँ पे 2 8 7 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका देख सकते हैं आप 6 5 7। अभी नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात नहीं करेंगे, आगे हम करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसके वैलेंसी वेरिएबल होते हैं, सबको मालूम होगा। फास्फोरस का वैलेंसी 3 5 होता है, सल्फर का 2 4 6 होता है। तो वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट वैसे एटम्स करेंगे, एलिमेंट्स करेंगे जिनके पास एटलीस्ट 3 सेल्स हों। आप देख सकते हैं सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन के पास 3 सेल्स हैं। इसके पहले जितने भी एटम्स को डिस्कस किए हम लोग, स्पीसीज को डिस्कस किए, केवल 2 सेल्स था, यहाँ पे 3 सेल्स हैं। अगर सेल 2 से ज़्यादा होगा तो एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करता है, मतलब वैलेंसी 1 से ज़्यादा होना। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स की अगर बात करें तो ये बात अभी भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में करेंगे, आगे जरूरत पड़ेगा। केवल लिख देते हैं हम बॉन्ड्स। सल्फर 2 भी बनाता है, 4 भी बनाता है, 6 भी बनाता है। फास्फोरस 3 5, क्लोरीन 1 3 5 7। एक बार ध्यान रखिएगा 2 मैन वैलेंसी है, फास्फोरस का भी 3 है और Cl का भी मैन वैलेंसी 1 है। ठीक है, मोस्ट कॉमन वैलेंसी। ठीक है, तो आगे बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग आयंस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो लुईस स्ट्रक्चर ऑफ आयंस। जैसे लोग NO2+ की बात करें, नाइट्रोनियम आयन, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? जितना आसान वाटर का था उतना ही आसान NO2+ का है। कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए। सबसे पहले हम लोग चेक करें सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम N है, कम पे रहेगा तो NO, फिर से आपको कैलकुलेट करना होगा N1। तो देखिए N1 जो होगा, तो सेंट्रल एटम N है, तो 5 + 6 × 2 -1। अगर प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस। प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। अब ये वैल्यू आपका कितना आएगा? 5 + 11 = 16। N2 की बात करें 2 × 0, हाइड्रोजन नहीं है, 2 फॉर हाइड्रोजन। अदर एटम के लिए 8 लेते हैं, 8 × 3 होगा। ये वैल्यू 2 + 24, ये आपका 26 आएगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग N3 निकालें, आपको मालूम है डिफरेंस लेना होगा N2 और N1 का। तो N2 26 है, N1 16 है।
और ध्यान से देखिए क्या वैल्यू आ रहा है, N1 का 5 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 1, 5 प्लस 11 16, N2 2 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 3, तो ये तो 0 होगा ना वैल्यू, ये वैल्यू 24, तो N3 आपका 24 माइनस 6, ये वैल्यू आएगा आपका 8। और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करें तो 8/2 4 आएगा, और N4 निकालें तो निकलेगा N1 माइनस N3, मतलब 16 माइनस 8, ये वैल्यू आपका 8 आ गया। तो नंबर ऑफ लॉन पेयर 8/2 इक्वल टू 4 हो गया। अब बॉन्ड्स पे आते हैं, 4 बॉन्ड्स हैं, तो क्या करें, आपको मालूम है कि N 3 बॉन्ड बनाता है, O 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन बॉन्ड 4 आया है। तो अगर हम 3 बॉन्ड बनाएं, मतलब एक तरफ 2 बॉन्ड एक तरफ 1 बॉन्ड, नाइट्रोजन को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राइट वाले ऑक्सीजन को प्रॉब्लम है। तो बॉन्ड जितना आएगा उतना ही रखना होगा। तो 4 बॉन्ड है तो आप यही कर सकते हैं, 3 बॉन्ड तो एक तरफ कर नहीं सकते हैं, दोनों तरफ 2-2 बॉन्ड कर दें। अब प्रॉब्लम N को है, तो इसके लिए क्या करना होगा, जिस एटम को प्रॉब्लम है चार्ज का प्लेसमेंट वहीं पे होगा, मतलब N पे प्लस चार्ज आप डाल दें। जैसे ही चार्ज डालेंगे प्रॉब्लम खत्म होगा। आपको टेबल दिया गया था, आप देख सकते हैं N प्लस कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो देख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चार्ज कहाँ आएगा, जो एटम प्रॉब्लम में। अगर प्रॉब्लम ऑक्सीजन पे होता तो चार्ज ऑक्सीजन पे होता। अब लॉन पेयर की बात करें, सेंटर एटम पे चेक कीजिए, N प्लस का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, N प्लस का कितना होगा, N का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, लेकिन N प्लस का 4 होगा। बॉन्ड 4 बना लिया है, तो लॉन पेयर N पे नहीं होगा, हाँ O पे होगा। कितने लॉन पेयर्स होंगे, 2-2, आप देख सकते हैं 4 लॉन पेयर था, बहुत सिंपल है। उसी ढंग से अगला केस होगा NO2 माइनस का, आप ट्राई कीजिए बनाने का। NO2 प्लस के जगह पे NO2 माइनस, आसान है आपके लिए। तो मॉलिक्यूल का जितना आसान है, आयन का भी उतना ही आसान है। और इस ट्रिक से आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। थोड़ा सा अभी कुछ और भी जानना होगा। एलिमेंट्री केसेस के लिए ठीक है, जितना बताया गया उससे काम चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग और भी केसेस लेंगे तो कुछ थोड़ा जानकारी आपको अलग से लेना होगा। तो कितना आसान है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, हो गया। चलिए, यहां पे भी सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा और स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें NOO, ठीक है। अब N1 की बात करें तो यहां पे ये वैल्यू आपका माइनस होगा तो प्लस होगा, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 18 आएगा। कितना देर हो गया इसका, तो ये वैल्यू आपका 18 आएंगे। प्लस इसलिए दिया गया है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब N2 की बात करें तो यहाँ भी 2 इंटू 0 प्लस
8 इंटू 3 24 आएगा, N3 आपका N2 माइनस N1, तो 24 माइनस 18 कितना आएगा 6। नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपका 6/2 3 आएगा। और N4 की बात करें तो N1 माइनस N3, तो N1 आपका 18 है और N3 है आपका 6, ये वैल्यू 12 आएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर 12/2 = 6। देखिए सिंपल है। बॉन्ड आपका 6 ये 3 आया है, अब 3 है तो क्या करें, N 3 बॉन्ड बनाता है, O 2 बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड को डिवाइड नहीं करेंगे। अब एक बॉन्ड तो दे ही सकते हैं, अब एक बॉन्ड है उसको डिवाइड नहीं करना है, लेफ्ट में लगा देते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम किसको है, तो प्रॉब्लम N को नहीं है, लेफ्ट वाले O को भी नहीं है, राइट वाले O को है, क्योंकि O एक बॉन्ड बना रहा है। तो क्या करना है, चार्ज कहाँ रखना है, तो चार्ज आपको बताया गया था N पे नहीं होगा, O पे होगा। किस O पे होगा, राइट वाले O पे होगा, ये निगेटिव चार्ज। अब प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, इसलिए नहीं है कि O माइनस का मतलब क्या हो गया, आपको मालूम है एक बॉन्ड बनाता है, आपको टेबल दिया गया था। लॉन पेयर एडजस्ट करना है, सेंट्रल एटम पे चेक कीजिए पहले। N के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, खर्च कितना कर रहा है 3 बॉन्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक पेयर। लेफ्ट वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे 2 लॉन पेयर होगा, राइट वाले चूंकि O माइनस का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक खर्च किया है, 6 का मतलब 3 लॉन पेयर। बहुत सिंपल है। आगे हम लोग अब जो है कुछ होमवर्क आपको हम दे रहे हैं, आप ट्राई कीजिएगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, और अगले क्लास में की बात हम करेंगे। पहले आप होमवर्क नोट कर लें, कोशिश कीजिएगा बनाने का। तो ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर फॉर फॉलोइंग स्पीसीज। फर्स्ट कार्बोनेट आयन, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं NH2 माइनस, थर्ड H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, फोर्थ C2H6 C2H4 6 C2H2 7 SO2 8 SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, O3 10 HNO2। आपको इस 3 केस में दिक्कत हो सकता है, कुछ अलग से जानना होगा, घबराना नहीं है। SO2 SO3 और O3 में आपको प्रॉब्लम होगा, O3 मीन्स ओजोन। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, होमवर्क आप कीजिएगा। और आगे अभी सेंट्रल एटम आपका एक है, केवल अगर बात करें तो 3 केसेस 4 5 6 में सेंट्रल एटम का संख्या 2 है। तो अगले क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, सेंट्रल एटम 2, उसके बाद 3, तो उसके बाद वहाँ पे हम लोग लुईस स्ट्रक्चर का कुछ ड्रॉबैक्स हैं,
तो वो सभी आपको बताया जाएगा। थैंक यू।